Okay, good morning children. So beta today we are going to start with the same problem children which we tried in the last class. Okay, the same problem we are having, that write a program to input a string and to print the count of alphabets, digits and symbols in that string. As I told you that we are going to make use of the library methods for this. So children, for that we have to look at the character handling methods. Children, you know that in this program we have to extract the individual characters from the string. Okay, and then we have to check whether these characters are a letter, they are digits or a symbol. So children, you know that we were actually checking the ASCII code of these characters. Okay, in the first approach we were converting all the characters in their equivalent ASCII code. In the second approach children, we were directly comparing the characters, and here in this third approach children, okay, we have to make use of a library class, and children, the name of that library class is character. Okay, and this character class children, it also has a number of methods attached with it. Okay, and we can make use of these methods to solve this problem. Okay, and children, actually in future programs also we will make use many of these methods. Okay, so now look, character is a library class children having number of method. It is same like as we have learned about the math class. Okay, all of you know about the math class. As you know that inside the math class we are having number of method, for example POW, SQRT, okay, max, min. Okay, in the same way children, we also have one character class. Take care, it starts with a capital C, and okay, and it belongs to the lang package. What do we mean by lang package children? We will learn it in future. Okay, first look in this sheet children, the 7 methods I have shown you. In the first method is given is letter. ठीक है, इज लेटर में बेटा एल कैपिटल में होगा. To check if a given character is an alphabet or not and returns the result as true or false. Children, यहाँ पे not है, make it false. Okay, it should be false, true or false. ओके, तो ये बेटा जो मेथड है इज लेटर, वो क्या करता है बेटा, एक जो भी कैरेक्टर आप इसको देते हो ये उसको चेक कर लेता है कि वो लेटर है कि नहीं, यानी कि कोई अल्फ़ाबेट ए टू जेड में कैपिटल और स्मॉल कुछ भी हो, ये चेक करेगा और आपको अपना आंसर ट्रू या फॉल्स में दे देगा. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम लोग. मैंने यहाँ पे लिया कैर सी एच इक्वल टू कैपिटल एम, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा एक छोटा सा कोड लिख रहे हैं, इफ़ कैरेक्टर डॉट इज लेटर सी एच इक्वल टू ट्रू, then system dot out dot print letter else print नॉट अ लेटर. ठीक है, तो देखिए मैंने ये कोड यहाँ पे लिखा. ठीक है, कैर सी एच इक्वल टू कैपिटल एम, एक यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल लिया, उसमें कैपिटल एम स्टोर कर दिया. अब बेटा नाउ आई हैव टू चेक वेदर दिस कैरेक्टर वेरिएबल हैज़ अ अल्फ़ाबेट और नॉट. तो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, याद है ना, जैसे यहाँ मैथ के फंक्शन थे तो आप कैसे लिखते थे, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू. इन द सेम वे चिल्ड्रन यहाँ पे हमें क्या अप्रोच यूज़ करनी है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर. ओके, सो यू विल मेक यूज़ ऑफ द कैरेक्टर क्लास एंड डॉट लगा के इसका एक जो मेथड है वो कॉल करेंगे इज लेटर, और फिर ब्रैकेट में वो वेरिएबल या वैल्यू बताइए जो आपको चेक करनी है. ठीक है, तो बेटा ये चेक कर लेगा कि इफ़ कैपिटल एम इज़ अ लेटर और नॉट, और अगर आंसर इज़ इक्वल टू ट्रू, अगर आपका आंसर ट्रू आया तब तो ये क्या प्रिंट कर देगा, लेटर, वरना क्या प्रिंट कर देगा, नॉट अ लेटर. ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो सिचुएशन है इसमें तो आंसर मेरा क्या आने वाला है, ट्रू आएगा. तो यानी क्या प्रिंट हो जाएगा आपका आंसर, लेटर प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, और वहीं अगर अभी आप अगर ये सी एच की वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है, यहाँ पे एम है, एम हटा के यहाँ 5 दे दीजिए,
तो 5 क्या है आपको पता है, लेटर नहीं है, ये क्या है, एक डिजिट है। तो आपकी बार जब आप यूज़ करोगे इफ़ कैरेक्टर डॉट इज लेटर सी एच, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। और क्या फॉल्स बेटा ट्रू के इक्वल है, नो। तो कंडीशन विल गेट रॉन्ग, और आपकी बार पार्ट जो कंट्रोल विल मूव टू द एल्स, और क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट अ लेटर, ठीक है ना। तो ऐसे बेटा ये हमारा काम बड़ा इजी कर देता है। देयर इज़ नो नीड टू मेक एनी काइंड ऑफ कंपेरिजन चिल्ड्रन, एंड देयर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट द कैरेक्टर इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एस्काई कोड। ओके, वी कैन डायरेक्टली चेक द कैरेक्टर्स। ऐसी अब आपके लिए फिर बड़ा इजी हो जाएगा। अगला जो मेथड है वो क्या है, इज डिजिट। ये बेटा क्या चेक करता है कि कोई भी कैरेक्टर अगर है तो वो कोई नंबर है क्या, 0 से लेकर 9 के बीच में कोई कैरेक्टर है, ठीक है। और अगर वो है, फॉर एग्जांपल यहीं पे कैर सी एच इक्वल टू 5 है, अगर आप इसके ऊपर क्या मेथड यूज करो, कैरेक्टर डॉट इज लेटर हटा के यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, इज। तो हमने यहाँ पे बेटा यूज कर लिया कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, ठीक है। तो ये अब की बार जो है क्या आंसर आएगा इसका, ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट कर सकता है यहाँ पे कि यस इट इज़ अ डिजिट, ठीक है। तो जहाँ पे कैरेक्टर डॉट इज लेटर है हटा के मैंने इज डिजिट कर दिया। ऐसे ही बेटा जो नेक्स्ट मेथड है वो रेयरली यूज होगा, दैट इज वाइट स्पेस। ओके, इट चेक्स वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज अ ब्लैंक स्पेस, टैब स्पेस और अ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो बेटा यहाँ पे जो वाइट स्पेस का क्या मतलब होता है, द कैरेक्टर्स विच आर इनविजिबल, बेटा जो एग्जिस्ट तो करते हैं हमारे किसी भी वेरिएबल में, और दे ऑक्यूपाई द मेमोरी ऑल्सो, बट चिल्ड्रन दे आर इनविजिबल, ठीक है, हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक। और ये भी आपको अपना आंसर क्या करता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद बेटा फिर अगले दो फंक्शन, ठीक है, ये भी हमें काम आएंगे अभी फ्यूचर में, जैसे है इज अपर केस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो एक कैरेक्टर दिया गया है, ठीक है, वो क्या कैपिटल लेटर है, ठीक है। यानी इट बेटा इट चेक्स फॉर द कैरेक्टर वेदर इट फॉल्स इनटू कैपिटल ए टू कैपिटल जेड रेंज ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और ऐसी नेक्स्ट मेथड है इज लोअर केस। वी कैन मेक यूज ऑफ दिस मेथड टू चेक वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज ए स्मॉल अल्फ़ाबेट और नॉट, ठीक है। स्मॉल ए टू जेड की रेंज में कैरेक्टर है, अगर है तो ये आपको अपना आंसर ट्रू देगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स देगा, ठीक। और इसके बाद बेटा जो लास्ट के जो दो मेथड है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, टू अपर केस एंड टू लोअर केस। तो बेटा मेरे पास जो चार यहाँ पे मेथड है वो खाली लोअर केस और अपर केस के लिए हैं। जो देखिए जो फर्स्ट वाले दो मेथड हैं, इज अपर केस एंड इज लोअर केस, दे आर यूज टू चेक वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज इन अपर केस और लोअर केस। और लास्ट के जो दो मेथड हैं, टू अपर केस एंड टू लोअर केस, बेटा दे आर यूज टू कन्वर्ट द कैरेक्टर्स, ओके, इन अपर केस और लोअर केस। जैसे इसका भी मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल शो करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा कैर सी एच इक्वल टू स्मॉल पी, और फिर अगली लाइन देखिए ध्यान से, मैंने कहा सी एच इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस सी एच, ठीक है बेटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने लिखा कैर सी एच इक्वल टू स्मॉल पी, यानी बेटा सी एच जो एक कैरेक्टर वेरिएबल है, इट होल्ड्स अ लेटर इन स्मॉल केस। अब हमें जो जॉब है वो क्या करना है पता है, कि इस स्मॉल पी को कैपिटल पी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या लिखोगे, सी एच इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, बेटा यहाँ पे अपर का यू और केस का सी कैपिटल में होगा, सी एच, ठीक है। और ब्रैकेट में सी एच दे दिया, तो सी एच की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, स्मॉल पी है, तो दैट स्मॉल पी विल बी कन्वर्टेड टू अपर केस एंड अगेन इट विल बी स्टोर्ड इन द सेम वेरिएबल दैट इज सी एच। तो अब सी एच में कैपिटल पी आ जाएगा, और अब आप अपना जब सी एच प्रिंट करोगे तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका कैपिटल पी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम लोग अपने किसी भी कैरेक्टर को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लास्ट टू मेथड। ओके चिल्ड्रन, तो दीज 7 methods you have to keep in your mind, okay, while working with the characters only. Okay children, remember children कि that these method they do not work on the strings, यानी कि अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं, डबल कोट पे हैं, तब ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। दे विल ओनली वर्क ऑन द कैरेक्टर वेरिएबल और द कैरेक्टर वैल्यूज विच आर केप्ट विद इन द सिंगल कोड, ठीक। अब बेटा जब इसको हम लोगों ने यहाँ समझ लिया है, तो नाउ वी कैन मूव टू द आंसर ऑफ द सेम प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 बाय यूजिंग द मेथड्स। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम है,
चलते हैं सीधे अपने प्रोग्राम में। मैंने क्या बोला, एंटर अ सेंटेंस str इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट लाइन। तो मैंने फिर से वही किया, str के अंदर बेटा एक यहाँ पे व्हीकल नंबर इनपुट कर दिया UP32CJ 5467। ठीक, इसकी लेंथ आपको पता है 12 है। इसकी यहाँ पे हमने यहाँ पे इंडेक्स मार्किंग कर ली। ठीक है, और इसके बाद फिर प्रोग्राम में आ जाइए, वही चीज़ a इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, सिंबल इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 है, पता है क्या करेगा, अल्फ़ाबेट काउंट करेगा, d इज इक्वल टू 0 एंड सिंबल इक्वल टू 0। ठीक, तीनों काउंटर ले लिए और x मेरा लूप चलाने के लिए काउंटर है यहाँ पे। ठीक, और इसके बाद फिर अब आ जाइए अपने प्रोग्राम पे। आपने लूप चलाया यहाँ पे 0 से लेके लेस देन str डॉट लेंथ, यानी 0 से 11 तक एक लूप एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ x इज 0, सो कम इन साइड ch इक्वल टू str डॉट कैरेट x, मीन्स कैरेट 0 फेच करिए। तो ch में क्या निकल के आ गया आपके पास, कैपिटल U आ गया। ओके बेटा, अब देखिए, अब यहाँ पे हमने फर्स्ट कैरेक्टर फेच कर लिया है कैपिटल U, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज द अल्फ़ाबेट, डिजिट और सिंबल। तो दो अप्रोच आपने देख ही लिए थे, स्काई कोड में कन्वर्ट करके, फिर सेकंड डायरेक्टली कंपेयर करके, और अब देखिए थर्ड वन। अब बेटा ch को कैसे हमने चेक किया, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ कैरेक्टर डॉट इज लेटर ch। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे एक लाइब्रेरी मेथड कॉल किया इज लेटर, किस क्लास से, कैरेक्टर क्लास से, और ch की वैल्यू कितनी है, कैपिटल U। तो बेटा ये अपने साथ कैपिटल U लेके जाएगा और चेक करेगा कि ये अल्फ़ाबेट है कि नहीं, यानी कि A to Z की रेंज में है क्या। तो आपको पता है मेरा आंसर कितना आएगा, ट्रू आ जाएगा। तो अगर आंसर ट्रू आया है देन A प्लस प्लस, A की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे फिर आप आगे जाओगे, x प्लस प्लस, x की वैल्यू 1 होगी, ch इक्वल टू str डॉट कैरेट 1, नाउ द वैल्यू ऑफ ch विल बी p, इंडेक्स नंबर 1 से क्या फेच आएगा, p, और कैरेक्टर डॉट इज लेटर ch। अब की p को चेक करिए कि क्या वो लेटर है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर मेथड मैंने अप्लाई किया, फिर से आंसर ट्रू आएगा, a प्लस प्लस, वैल्यू ऑफ a विल बिकम 1। फिर आगे चलिए, x प्लस प्लस, यहाँ से कंट्रोल ऊपर जाएगा, नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बी 2, तो ch इक्वल टू str डॉट कैरेट 2, 2 पे क्या निकल के आएगा बेटा, 3 निकल के आएगा। अब ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ ch इज 3 विच इज़ अ डिजिट। तो अब की बार जब ये मेथड चलेगा कैरेक्टर डॉट इज लेटर ch, तो अब आप जानते हो ch की वैल्यू इस बार कितनी है, 3 है। तो अब की बार आंसर ट्रू नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉल्स, यानी कि ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, एंड द कंट्रोल विल मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इफ एल्स। और यहाँ पे अब की बार क्या चेक होगा, इफ कैरेक्टर डॉट इज डिजिट ch, यस सही है ना, अब की बार ये सही में जो 3 इज अ डिजिट, तो आंसर ट्रू आ जाएगा, और d प्लस प्लस, तो अब की बार बेटा d की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, जब आप x प्लस प्लस 4 पे आओगे तो 4 पे क्या मिलने वाला है आपको, एक सिंबल मिलेगा डैश के फॉर्म में। तो अब की बार जब आप ये चेक करोगे कैरेक्टर डॉट इज लेटर ch, इट विल प्रोड्यूस द फॉल्स, देन द कंट्रोल द कंट्रोल विल मूव टू द सेकेंड पार्ट, और यहाँ पे जो मेथड अप्लाई हुआ है दैट इज कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस द फॉल्स, क्योंकि ch में क्या है, डैश है। तो ना वो अल्फ़ाबेट है, ना वो सिंबल, सॉरी, ना वो अल्फ़ाबेट है, ना वो डिजिट है। तो कंट्रोल अपने आप कहाँ मूव कर जाएगा, लास्ट वाले एल्स में, एंड द वैल्यू ऑफ सिंबल विल इंक्रीज बाय 1। ठीक है, तो ऐसे बेटा मेरे ख्याल अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इसी सेम जो है प्रोग्राम को कैरेक्टर मेथड्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, दीज वर द 3 अप्रोचेज वी यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, एंड आई होप कि दैट सबको ये समझ में आ गए होंगे चिल्ड्रन। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, और देर इज़ लॉट टू लर्न बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम। ओके, कि कैसे हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर्स को हैंडल कर रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, तो इनमें से ही कुछ अप्रोचेज हम लोग अपने फ्यूचर प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन इट्स ओवर नाउ, एंड थैंक यू वेरी मच।